بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال آیت نمبر 23۔ اور اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ یہاں پہ دیکھیں بات کیا آ رہی ہے، لاؤ کیا، اگر کیا ہے، شرط، اگر اللہ کو علم ہوتا، علم عین لام میم، علم کا مطلب کیا ہے، بات کی گہرائی تک پہنچ جانا، اندر تک گھس جانا۔ اگر اللہ ان کے اندر گھستا اور ان میں کوئی خیر کیا ہوتی ہے، وہ جو سب کو معروف ہو، وہ جو سب کو پسندیدہ ہو، اس کو کہتے ہیں خیر، بھلائی، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بھلائی۔ بھلائی کیا ہے، کوئی اچھا کام، کیوں وہ سب کو پسند آتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو کھانا کھلانا اچھا کام ہے، سب کو پسند آئے گا۔ اچھا ہے کیوں، کیونکہ وہ سب کو پسند آتا ہے۔ سچ بولنا اچھا ہے، وہ سب کو پسند آتا ہے۔ یہاں پہ کس خیر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، حق کی طلب، شوق، حق کا شوق کیا ہے، وہ چیز ہے جو سب کو پسند آتی ہے، یعنی ٹروتھ، سچائی۔ ہاں کوئی ایکسپٹ کرے یا نہ کرے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے، چاہے آپ کافر ہوں کہ مسلمان ہوں، سچ کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے، منافقین کی، کہ منافق جو ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں، عقل ہی نہیں ہے ان کے اندر، اس وجہ سے وہ عمل نہیں کرتے۔ عقل کیوں نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھلائی کا شوق نہیں ہے، ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے حق بات میں۔ حق کیا ہے، سچائی۔ سچائی کیا ہوتی ہے، جو چیز جیسی ہونی چاہیے وہ ویسی ہی ہو۔ اس کو کہتے ہیں سچائی۔ تو اگر اللہ ان کے اندر گھستا اور ان کے اندر انٹرسٹ دے حق کا، تو ہوتا کیا، اللہ البتہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو الف ہے نا، یہ کیا ہے، فارم 4 کیا ہے، فارم 4 کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ حق کو آسان کر دیتا ان کے لیے، اور اگر وہ ان کو سناتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ پھر بات لاؤ کس کی، اگر کیا ہے، شرط، اور اگر وہ ان کو سناتا، یعنی اگر وہ اللہ ان کے اندر حق کی طلب دیکھتا اور اگر وہ ان کو سناتا تو وہ ولی، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے، واو لام، یہ ولیت اسی سے ہے، ولی بننا اسی سے ہے۔ ولی کیا ہوتا ہے، دو چیزوں کا اس طرح قریب آنا کہ ان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو، کوئی اجنبیت نہ ہو۔ یہ ولی اللہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ کتنے قریب ہے، کہ اللہ اور اس کے اندر کوئی اجنبیت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نامعلوم ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نا پسندیدہ ہو۔ اور یہ جو تا ہے نا، یہ کیا بتاتا ہے، یہ فارم 4 ہے، جس کا مطلب ہے کام کو بے تکلف کرنا، محنت سے کرنا اور آہستہ آہستہ کرنا، کہ اگر ایک یہ چیز ان کے اندر حق کی کوئی طلب نہیں ہے،
ठीक है। और अगर होती तो वो जरूर उनको सुनाता, और अगर वो सुना भी देता उनको तो होता क्या, वो बेतकल्लुफ हो जाते। किसकी तरफ? हराम की तरफ। अब देखिए ना, वली, दो चीजों का इस तरह करीब आना कि उनमें कोई अजनबियत नहीं है। तो इसमें मिसाल के तौर पे ये एक बनता है, इसमें और हराम में कोई अजनबियत नहीं है, दोनों करीब हैं। या अल्लाह की नाफरमानी, इसमें और अल्लाह की नाफरमानी में कोई, ये अल्लाह की नाफरमानी पर इतने करीब आ गया, और फिर नाफरमानी पर बेतकल्लुफ, कोई हेजिटेशन नहीं है, और फिर नाफरमानी पर मेहनत हो रही है। और फिर नाफरमानी ये नहीं है कि आपने आज कर लिए तो कल नहीं करेंगे, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके आज थोड़ी की है, कल थोड़ी और करेंगे, फिर परसों थोड़ी और करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी और करेंगे, फिर थोड़ी और करेंगे। तो यहाँ पे वलीयत किसके साथ है? नहीं, वलीउल्लाह तो अल्लाह के साथ दोस्ती करता है, लेकिन यहाँ पे मुंह फेरना है, अल्लाह को पीठ दिखाना और हराम के साथ जुड़ जाना। तो फिर वो करते क्या है? मोरिदून, अरादा, एक किनारे पे चले जाते हैं। देखें ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अल्लाह है, ये है सीधा रास्ता, ये जमीन है, कितने कितने रास्ते निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं? वो जो बंदा है यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहा है, अब ये बंदा जो है ये एक मुनाफिक है, इसमें कोई खैर की बात नहीं है। तो ये मुनाफिक है, जब अल्लाह ऐसे कुछ कहता है तो ये एक किनारे पर चला जाता है। यहाँ पर मोमिन को अल्लाह कुछ कहता है तो वो भागकर अल्लाह की तरफ जाता है। यहाँ पे बात क्या बयान की जा रही है कि इन लोगों के अंदर हक का काम करने का कोई जज्बा नहीं, और उन्हें अगर तामील हुक्म में जंग के लिए निकल आने की तौफीक दे भी दी जाए तो ये खतरे का मौका देखते ही बेतकल्लुफ भाग निकलते हैं। कोई नहीं मैदाने जंग है। अब ये मुनाफिक है, मोमिन तो लड़ता है अल्लाह के लिए। अब ये मुनाफिक अगर इनको जंग में आप दाखिल भी कर लें तो ये मौके की तलाश में रहते हैं कि कभी कोई मौका मिले तो फौरन जंग से बाहर निकल जाए, फौरन, क्योंकि इनको तो अल्लाह के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है ना। गाफिल हैं ये लोग। कौन है? गाफिल और सुस्त। गफलत है किस चीज के ऊपर? हक के ऊपर। सुस्ती है किस चीज के ऊपर? हक के ऊपर। तो क्या बात समझ में आती है? अगर अल्लाह को मालूम होता कि इनमें कुछ भी भलाई है तो वो जरूर उन्हें सुनने की तौफीक देता, लेकिन भलाई के बगैर अगर वो उनको सुनाता तो वो बेरुखी के साथ मुंह फेर जाते। गोया ये आयत हमें एक इक्वेशन दे रही है। किस चीज की? हमें एक टिप दे रही है। किस चीज की? कि जब तक तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होगा ना, जब तक तुम्हारी दिलचस्पी नहीं होगी हक के साथ, हक तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम अल्लाह से हक मांगोगे नहीं। और हक क्या है? पहला हक
अल्लाह, पहली सच्चाई, दूसरी सच्चाई आखिरत। इन दोनों के बगैर एक मोमिन का गुजारा नहीं है, क्योंकि आखिरत को पार करेंगे तो जन्नत खड़ी है और जन्नत में हमारे लिए आजादी है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है ना, देखें, ईमान का बीज अल्लाह ने सबको दिया है। मोमिन उस ईमान को इंक्रीज करता है और पहुंचता कहाँ है? जन्नत की तरफ। जन्नत उसका ठिकाना होती है। मोमिन जब ईमान को इंक्रीज करता है तो पहुंचता कहाँ है? हक। उसके सामने हक आता है और ऐसे ही लोगों को जन्नतुल अदन फिरदौस बरी मिलेगी। जो जितना हक का तालिब है वो उतना ही ऊंचा मकाम हासिल कर सकता है। ये एग्जाम्पल है मुनाफिकीन की कि उनके अंदर हक की यानी अल्लाह की कोई चाहत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई इंसान है ना, आपकी किसी के साथ दोस्ती है, लेकिन आप क्या कहते हैं, मैं उसके साथ मिलती तो हूँ लेकिन मुझे कुछ फील नहीं होता, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है उसके साथ। जब भी मैं उसके पास बैठती हूँ तो मुझे कुछ फील नहीं होता। तो होते होते क्या होगा, जब फीलिंग नहीं होगी तो आप मुंह मोड़ लेंगे ना। आपकी दिलचस्पियां कहाँ हो जाएंगी? उनके साथ जिनके साथ आपकी फीलिंग्स है। इसी तरह जब बात हक की आती है, अल्लाह दिल में झांक कर देखता है कि हक के साथ आपकी फीलिंग क्या है। जब आप कुछ फील करते हैं ना अल्लाह के लिए, तभी अल्लाह आपको देता है। लेकिन जब आप जब फीलिंग नहीं है ना अल्लाह के लिए, तो आखिरत के लिए भी काम नहीं होगा, जन्नत के लिए भी काम नहीं होगा। और फिर होगा क्या, जो पिछली वाली आयत कह रही है कि अल्लाह के नजदीक बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। असल बीमारी क्या है? अकल से काम नहीं लिया। हक बात सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के सामने जानवरों की तरह हैं। हाँ, पढ़ा था, आगे कुछ बात नहीं, कोई खबर नहीं। अल्लाह ने जो सलाहियत दी है उसको सही तौर पर इस्तेमाल ही नहीं करते। हक की तरफ उनको लगाते ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि दिलचस्पियां और है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह हर एक के दिल में झांक कर देखता है, क्या मैं रहता हूँ कि नहीं रहता। कहाँ झांक रहा है? दिल में। इधर क्या अल्लाह है कि नहीं है? अगर अल्लाह है और जितना है उतना आपका मकाम अल्लाह के यहाँ होगा। अगर सिर्फ अल्लाह एक कॉर्नर पे है ना, यहाँ पे एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है अल्लाह, तो उधर भी आप जन्नत में एक कॉर्नर पे बैठ जाएंगे। अगर आपका पूरा दिल अल्लाह से भरा हुआ है तो मकाम क्या होगा? जन्नतुल अदन, फिरदौस बरी की सरदारी मिलेगी। तो अल्लाह हर एक के दिल में झांकता है कि कोई ऐसी चीज है जो मुझे, क्योंकि खैर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, कोई ऐसी चीज है जो मुझे पसंद आ जाए। जब वो दिल में झांक के ऐसी चीज देखता है जो अल्लाह को पसंद आती है, फिर अल्लाह आपको अपॉर्चुनिटीज देता है उसको ग्रो करने की, क्योंकि वो चीज अल्लाह को पसंद आई हुई है। फिर फरिश्ते तो उतरेंगे नहीं, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि वो चीज ग्रो हो, ग्रो हो, ग्रो हो और इतनी इतनी बढ़ जाए कि आप अल्लाह के पसंदीदा बन जाए। लेकिन जब अल्लाह आपके दिल में झांकेगा ना, और नहीं होगा अल्लाह, तो अगर आप आ भी जाएंगे कुरान की मजलिस की तरफ, एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे, यानी अगर अल्लाह उनको सुनवा भी देता, यानी कुरान की तरफ आ भी गए, क्लास में बैठ भी गए, एक तो
सुनी अनसुनी कर लेंगे, एक दफा बैठेंगे और दूसरी दफा निकल जाएंगे, एक किनारे की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि है ही नहीं ना। अब इंसान टाइम वहां स्पेंड करता है जहाँ उसको इंटरेस्ट होता है। मूवीज में इंटरेस्ट है तो उधर, कपड़ों में इंटरेस्ट है तो उधर, मेकअप में इंटरेस्ट है तो उधर, किताबों में इंटरेस्ट है तो उधर। तो जब आप अल्लाह से अल्लाह को मांगे तो ये आयत क्या बताती है, टिप है, क्योंकि हम सब चाहते हैं, हम सब इस राह के सवारी हैं, सिराते मुस्तकीम की। हम सब चाहते हैं कि हम यहाँ पहुंचे, हम सब अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। तो ये आयत क्या बता रही है, ये टिप है, अपने दिल में झांक के देखें अल्लाह कितना है, क्योंकि उसने पे आपके दिल में झांकना है सबसे पहले कि मैं कितना हूं। अगर अल्लाह 50% है तो 50% ही काम होगा, लेकिन अगर अल्लाह 100% है, जैसे सहाबा के दिलों में था, तो सिर्फ मांगने से नहीं, पहले अंदर झांके अल्लाह कितना रहता है। और अगर अल्लाह नहीं रहता तो मोरिदून, यहाँ मीम क्या है, इसम फाइल, तो आप एराज बरतने वाले होंगे, आपकी दोस्तियां नाफरमानी और हराम की तरफ होंगी, मेहनत हराम की तरफ, मुशक्कत हराम की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता हराम के साथ ऐसे करीब आ जाएंगे कि आप और हराम में कोई अजनबियत नहीं। तो ये पूरी आयत क्या कह रही है, अल्लाह चाहिए ना, अल्लाह का कुर्ब चाहिए ना, यहाँ झांके अपने दिल में कि कितना आपका दिल उसके लिए तड़पता है।